Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to my channel, Biology with CB Ma'am. Here I am, CB, and here we are going to discuss the new topic of the chapter 14, Class 10 Biology, the asexual reproduction. In previous lecture, we have studied superficially the different types of asexual reproduction, and let's recall the previous knowledge. What is reproduction? So it is the production of individual of the same species, right? So an individual can live without reproducing, but a species cannot survive without reproduction. ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया. Then we have discussed the different types of reproduction, like sexual and asexual. And in asexual, we have also discussed a little bit about the different types of asexual reproduction, in which today we are going to discuss the detailed knowledge of the asexual reproduction. So the first one is the binary fission. So as you know that the asexual reproduction does not involve the fusion of gametes. So here we have the first one is the binary fission. So binary, bi mean two, right? Bi mean two. So here the organism divide into two. So division into two is simply known as binary fission. So it is the simplest and most common method of asexual reproduction. So it occurs in the prokaryotes especially, and in some unicellular eukaryotes like protozoa and some invertebrates also, right? So here the parent body divide into two daughter organism, and it take place during favorable condition. When the conditions are favorable, then the organism divide into two, and must keep in mind the division would be mitotic. They divide mitotically. The parent cell divide into two daughter cell, right? So here we are going to discuss it in the bacteria especially. So during the binary fission, what's going to happen here? The DNA which is present in an area which is known as nucleoid. इस area को कहते हैं nucleoid, जहाँ पे हमारे पास ये DNA मौजूद होता है. सही है. अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा कि ये जो डीएनए है ये डुप्लीकेट होगा, यानी रेप्लिका अपना बनाएगा, अपनी कॉपी बनाएगा. ये डीएनए है, इसने अपना रेप्लिका बनाया, एंड इट मीन्स कि इसने अपनी दो कॉपीज़ बना दी. ठीक है. सो ये जो दो कॉपीज़ हैं, अब ये क्या करेंगी कि मूव करेंगी ऑपोजिट पोल्स की तरफ. ठीक है. द टू कॉपीज मूव टुवर्ड देयर ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. नाउ द सेल मेम्ब्रेन इनविजिनेट्स. यहाँ पे देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनसाइड इनर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी. सो वी कॉल इट व्हाट? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और दी सेल मेम्ब्रेन इनविजिनेट इनसाइड एंड फाइनली डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू. नाउ so when this construction of cell wall and cell membrane take place, so the parent bacteria become divided into the two daughter bacteria. So when it grows in size, and then it would be ready for the next division. So here we have the following steps. The first is the DNA replication take place. The cytoplasmic membrane elongates and separating the DNA molecule. The third is the constriction of the cell wall and cell membrane take place, and finally the division of parent cell into two daughter cell, and the daughter cell start independent life. Okay, the most important thing is that बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास माइटोसिस नहीं होती है, राइट? क्योंकि माइटोसिस हमारे पास वहाँ होती है जहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए पाया जाता है. सो हियर आई हैव टोल्ड यू कि द रीजन वेयर द डीएनए टेक प्लेस और occur, that region is known as nucleoid. So there is no nuclear membrane. So यहाँ पे माइटोसिस की जगह हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर एमाइटोटिकली जो है पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल, राइट? नाउ इन प्रोटिस्ट हमारे पास क्या है? दे आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. अब यूकैरियोट्स मीन you mean true, and carrier word is used for nucleus. So these are those organisms, those unicellular mean एक सेल से बने, those organisms which contain the proper nucleus. So here
the parent cell divide into two daughter cell with the help of the binary fission. But this binary fission, या हम इसको दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं ये जो पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल में, चूंकि टू डॉटर सेल है तो इसलिए हम इसको बाइनरी फिशन कहते हैं. एंड हियर द माइटोसिस टेक प्लेस. माइटोसिस टेक प्लेस, ठीक है. माइटोटिकली जो है हमारे पास अमीबा है वो डिवाइड होता है इनटू टू, क्योंकि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट. दे कंटेन द प्रॉपर न्यूक्लियस एंड व्हेन द प्रॉपर डिवीजन ऑफ दिस न्यूक्लियस टेक प्लेस, सो वी कॉल इट व्हाट? Mitotically division or mitosis, and here the result would be the two daughter cell, so that's why we call it what? The binary fission. So ये important point था, ये आपको understand इसमें करना है, ठीक है. So यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि first of all ये जो nucleus है ये divide हो जाता है into two. There is division of the nucleus take place and then the division of cytoplasm take place. So the division of nucleus is also called karyokinesis. It is also known as karyokinesis, division of nucleus. And then this karyokinesis is followed by the division of cytoplasm. And this is also known as cytokinesis, right? And as a result, we have the two daughter cell and two daughter amoebae. The daughter cell grow in size and then again divide and redivide. So here is a diagram. So in some cases, like if we talk about the invertebrates, तो invertebrates में हमारे पास आते हैं जैसे प्लेनेरिया वगैरह, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ शो कर लेते हैं. इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास एग्जांपल है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया जो है प्लेटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है. फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, राइट. सो ये जो प्लेनेरिया है ये इसके अंदर डिवीजन हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेनेरिया, सही है. सो यहाँ पे क्या है कि बाइनरी फिशन कैसे होगी कि इसका ये रीजन, ठीक है. अब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आके ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू. और या इवन कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, इक्वल टू पार्ट्स में है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूं इस तरह टेल रीजन, अगर ये यहाँ से कट हो रहा है, ठीक है, या ये यहाँ से कट हो रहा है, तो हर एक पार्ट जो है ये अगर हेड रीजन से कट हो रहा है तो इसका टेल डिवेलप हो जाएगा, ठीक है. और अगर यहाँ पे ये टेल है तो यहाँ से आगे इसका हेड डिवेलप हो जाएगा. अंडरस्टैंड. सो प्लेनेरिया की बॉडी डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर प्लेनेरिया. सो यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी इज कट इनटू टू हाफ्स या फिजन, ठीक है. एंड मिसिंग पार्ट जो है वो डिवेलप हो जाएगा इन बोथ द हाफ. सो दिस type of asexual reproduction is very common in the planaria and also in many echinoderms. Echinoderms phylum में हमारे पास the well known example is starfish. Understand? ठीक है. तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके अंदर पे हमारे पास जो है बाइनरी फिशन होती है. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द मल्टीपल फिशन. अब हमारे पास क्या है कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बना देता है, ठीक है. एक सिस्ट मीन के एक हार्ड वॉल बना देता है, एक हार्ड कवरिंग बना देता है जो उसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइवल में हेल्प आउट करता है. अब सिस्ट के अंदर ये अमीबा जो है इसके अंदर न्यूक्लियस जो है बहुत सारे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस, ठीक है. बहुत सारे न्यूक्लियाई हमारे पास बनते हैं, ठीक है. और ये न्यूक्लिया जो है इसके इर्द गिर्द हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो सराउंड कर रहा है, ठीक है. अब जैसे फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाता है तो ये सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन होगा और ये जो है माइक्रो अमीबे जो है वो रिलीज आउट हो जाएंगे, ठीक है. सो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक प्लेस अराउंड देम. सो ड्यूरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है.
and when the favorable condition return, the nucleus of the parent divide into many daughter nuclei by repeated division. ठीक है, अब ये सिस्ट के अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड है जैसे ही न्यू फेवरेबल कंडीशन आ जाती है. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये जो साइटोप्लाज्म है वो इसके इर्द गिर्द सराउंड करना शुरू कर देता है एंड हमारे पास छोटे माइक्रो अमीबे जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे एंड देन वो उस पार्ट से रिलीज आउट हो जाते हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ डिवीजन इन विच द सिंगल पेरेंट डिवाइड इनटू मैनी daughter cells into many daughter cells, so this is known as multiple fission. Okay, now moving toward the next asexual reproduction, which is known as budding. As the name indicate, the formation of bud. So what is bud? Bud is an outgrowth on the parent body. आपके पास इस जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर एक स्मॉल बड क्रिएट होता है. ठीक है, एंड एज वी कैन सी दिस इन द यीस्ट एंड ऑल्सो ये हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ में भी होते हैं. ठीक है, एंड हमारे पोरिफेरा में भी होते हैं, स्पॉन्जिस में है, सेलेंट्रेट्स वगैरह में भी हमारे पास ये बडिंग वगैरह पाई जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे चूँकि हमारी बुक में यीस्ट से डेवलप यीस्ट के अंदर ये जो है डिस्कस किया गया है. सो यहाँ पे क्या होता है, द न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो जाएगा इंटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड first of all the bud is formed and then the division of the nucleus take place and then the shifting of the one nuclei into the bud. ठीक है, and each bud enlarge, ये enlarge हो जाता है, each bud enlarges and develop the characteristic of the parent organism. जैसे ये parent की characteristic थी उसी तरह इसके अंदर remain develop होना शुरू हो जाती है. ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ये है important कि the bud जो है ये मे बी सेपरेट हो जाएगा पेरेंट से या ये इसी के ऊपर स्टिक रहेगा. ठीक है, या तो ये सेपरेट हो जाएगा या इसी के ऊपर अपनी कॉलोनी वगैरह डेवलप कर सकता है. अगर ये सेपरेट हो जाता है तो ये गिर के अलग से एक न्यू इंडिविजुअल लाइफ जो है वो गुजारना शुरू कर देता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बडिंग है, बडिंग हमारे पास स्पॉन्जिस में भी है. ठीक है, स्पॉन्जिस में एंड इसके अलावा हमारे पास मैंने कहा सेलेंट्रेट्स में जिसकी एग्जांपल है हाइड्रा. ठीक है, स्पॉन्जिस एग्जांपल है पोरिफेरा की, फाइलम पोरिफेरा. ठीक है, और ये सारे क्या है आपके पास इन्वर्टिब्रेट है. ठीक है, और हाइड्रा जो है सेलेंट्रेटा की एग्जांपल है. ठीक है, फाइलम सेलेंट्रेटा की एग्जांपल है. ठीक है, और उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन जो है बडिंग के ज़रिए होती है. सो इन सच केसेस हमारे पास क्या है, स्मॉल बर्ड फॉर्मेशन होती है और ये बर्ड फॉर्मेशन क्या है, किसके ज़रिए होती है, माइटोसिस के ज़रिए, माइटोसिस के ज़रिए. ठीक है, और बर्ड इनलार्ज हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, एंड देन फाइनली इट डिटैचेस फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन हमारे पास क्या है जी, ये ज़्यादातर हमने फंगस में देखे हैं. ठीक है, एंड फंगस में भी आपने देखा है अक्सर रोटी के ऊपर जो फंगस डेवलप हो जाता है, ब्रेड के ऊपर डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस. सो राइजोपस इज़ ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी उसको कहा जाता है. ये फंगस है आपके पास. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, when rhizopus reaches the reproductive stage. ठीक है, जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ पहुंच जाता है तो इसके अंदर हमारे पास स्पोर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. सो स्पोर्स जो है इसके ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं. ये स्पोर्स जो हैं यूं ऐसे स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं और ये थिक वॉल है, इसकी जो वॉल है सेल वॉल वो बहुत थिक होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल को देख लें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपके पास ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर आपके पास ये फंगस डिवेलप हो गया. अब ये जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये डार्क ब्लैकिश कलर में आ जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये इसकी जो फंगस है इसके अंदर प्रॉपर रूट्स नहीं होते, तो रूट्स की जगह इसके अंदर होते हैं हमारे पास राइजोइड्स. रूट्स की जगह क्या होते हैं, राइजोइड्स, जो कि एब्जॉर्प्शन करते हैं सबस्ट्रेट से न्यूट्रिएंट्स को. अब सबस्ट्रेट क्या है, जिसके ऊपर ये फंगस ग्रो करता है. ठीक है, और ये इसकी स्टोलन पार्ट है. ठीक है, इस पार्ट को हम, ये हॉरिजॉन्टल जो इसका स्टेम है इसको हम कहेंगे स्टोलन.
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसके पास यहाँ पे इरेक्ट ब्रांचेस हैं। ये इरेक्ट ब्रांच जो है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। अब स्पोरेंजियोफोर के टिप पे हमारे पास एक स्वोलन पार्ट है जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। यस, सिंगुलर इसका है स्पोरेंजियम। क्लियर हो गया। अब ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर हमारे पास माइन्यूट्स जो हैं, छोटे छोटे स्पोर्स वगैरह वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स हैं आपके पास क्या होता है कि जैसे ही मेच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया की जो वॉल है, ये स्पोरेंजियम की जो वॉल है ये बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। अब जब ये बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, तो वो स्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। सो हर एक जो स्पोर है इसके इर्द गिर्द एक सिस्ट वॉल होती है, एक सिस्ट वॉल है, एक कवरिंग वॉल वी कैन से दैट। इसके इर्द गिर्द एक सिस्ट है जो कि उसको एक अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सर्वाइवल में सपोर्ट करता है। अब जैसे ये बस्ट हो गया एंड आपके पास ये स्पोर्स रिलीज आ जाते हैं, एंड जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट आ गया, फेवरेबल एनवायरनमेंट मीन कि जैसे ही इसको प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल गया, ऑक्सीजन अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल है, तो यहाँ ये जो ये आपके पास स्पोर्स हैं इससे एक न्यू राइजोपस जो है जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया फंगस के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया जो है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। जैसे इसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है, अनफेवरेबल मीन कि बैक्टीरिया के लिए हार्श इन्वायरमेंट है, टफ इन्वायरमेंट है जिसमें वो ग्रो नहीं कर सकता, तो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो अपने इर्द गिर्द या तो सिस्ट डेवलप कर देता है या उसके अंदर एक स्पोर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये वाला बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा, एंडो मीन इनसाइड, सो इनसाइड द बॉडी यहाँ पे हमारे पास एक स्पोर बनना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो एंडोस्पोर है ये जैसे ही नॉर्मल एनवायरनमेंट हो गया या फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जो एंडोस्पोर जो है ये आपको पास न्यू बैक्टीरियम दे देता है, मतलब देन ये बैक्टीरिया को अलाउ करेगा कि वो डिवाइड हो जाए एंड इजीली दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो सकता है, दो बैक्टीरिया में जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी बेस्ट एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं कि किस बैक्टीरिया के अंदर ये ज़्यादातर होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस स्पीशीज के अंदर हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। सो जैसे ही अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, सम स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। एंड विच टाइप ऑफ स्पोर, द एंडोस्पोर, एंड दे आर फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एंडोस्पोर। एंड जब भी हमारे पास फेवरेबल एनवायरनमेंट आ जाता है, हार्श कंडीशन हट जाएगी, तो बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा इजीली इनटू 2। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास चूंकि आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, सो हमारे पास एक और एसेक्सुअल प्रोडक्शन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि ये भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन है एंड इसमें हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिवेलप हो जाएगा इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिवेलप हो जाएगा इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग में। और ये हम कहाँ पे, यानी कि इसकी एग्जांपल्स क्या है, सम फिशेस है, ठीक है, सम फिशेस हो गई, ठीक है। फ्रॉग के अंदर भी हम पार्थिनोजेनेसिस देखते हैं। सम इंसेक्ट्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं इसके थ्रू। और बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोगों ने नोट अक्सर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, हनी बी जो है ये आपके पास दे ले एग इन द हनी कॉम्ब, ठीक है। ये अपने छत्ते के अंदर जो है अंडे देती है, ठीक है, हनी बी जो है। और हनी बी के जो एग्स हैं, बहुत सारे एग्स जो हैं वो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, और अनफर्टिलाइज जो हैं
इसके अंदर हमारे पास क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ठीक है। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं ये डिवेलप हो जाते हैं इनटू हैप्लॉइड, ये एन से मैं शो कर रही हूँ क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है हैप्लॉइड मेल में, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं ड्रोन। हनी बी का जो मेल है उसको हम नाम देते हैं ड्रोन, और वो हैप्लॉइड होता है, और वो किससे प्रोड्यूस होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से, और किस प्रोसेस के जरिए, इस पार्थिनोजेनेसिस के जरिए, ठीक है। जबकि हमारे पास एट द सेम टाइम क्या है, सम एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं बाय द मेल बी, एंड उससे डिवेलप हो जाएगा डिप्लॉइड फीमेल। हमारे पास यहाँ पे जो फीमेल है, ठीक है, सॉरी, सम एग्स जो हैं, ठीक है, उनको फर्टिलाइज कौन करेगा, ये मेल, ठीक है। और ये जैसे इनको फर्टिलाइज करेगा तो इससे हमारे पास डिप्लॉइड मीन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, डिप्लॉइड फीमेल, ठीक है। और इस फीमेल को हम कहते हैं क्वीन, एंड साथ में जो वर्कर्स हैं, इसके वर्कर बी हैं जो इस पूरे छत्ते का ख्याल और हनी बीज के जो बेबीज हैं उनका ख्याल रखता है, ठीक है। सो ये आपके पास ये भी ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा एक और है जो आपकी बुक में, शाहबोर्ड की बुक में जो है वो मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन एज द वर्ड इंडिकेट कि यहाँ पे पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड होते हैं बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। और ईच फ्रेगमेंट जो है वो है डिवेलप हो जाता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म में या न्यू ऑफस्प्रिंग में। तो अभी हमने अभी जिक्र किया था प्लेनेरिया का, ठीक है, प्लेनेरिया जो कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करता है। सो ये इसके अंदर जो है हमारे पास बाइनरी फिजन भी होती है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये एट अ टाइम हमारे पास ये प्लेटीहेलमिन्थस जो है, ये इसको ड्रा कर लेते हैं लिस्ट, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली क्या है, दे ब्रेक इनटू मैनी डिफरेंट पीसेस, ठीक है। और ईच जो फ्रेगमेंट है इट विल डिवेलप इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। सो दिस प्रोसेस जो है इज रिपीटेड, एंड रिपीटेडली हमारे पास ये न्यू पीसेस बनते हैं, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द पीसेस वी कॉल इट व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। प्लेनेरिया में हमारे पास बाइनरी फिजन भी होती है, अगर वो दो हिस्सों में डिवाइड है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड है और ईच पार्ट जो है वो डिवेलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, सो वी कॉल इट बाइनरी फिजन। और ऑन द अदर हैंड सर्टन हमारे पास जो वर्म्स हैं जब वो फुल साइज अटेन कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास ये प्लेनेरिया की एग्जांपल है, सो दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक अप इनटू 8 to 9 पीसेस। सो ईच पीस, और वी कैन से दैट द फ्रेगमेंट डिवेलप इनटू अ मैच्योर वर्म, ठीक है। मैच्योर आपके पास फ्रेगमेंट में डिवेलप हो जाता है। होप यहाँ तक आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास एक और ए सेक्शुअल प्रोडक्शन है जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, स्टडी करेंगे। और यहाँ तक अगर कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगेन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।